Hey YouTube, thanks for visiting. In this video, we are going to discuss the questions from chapter-wise general aptitude practice, and these are the session 5 of chapter-wise general aptitude practice. Okay, and the questions are from probability and arrangement. And in this session, we are going to cover the questions from 2019 to 2014. Okay, in the previous lecture, that is the lecture 4, we already covered the questions from 12 questions from probability and arrangement, and in this session, we also continuing the questions from the probability and arrangement. Okay, so let's start. And before starting, I am requesting you to all those who are new in my channel, please like the video, comment if you have any doubt in the comment section below, and if this session is helpful for you, then consider subscribing to my channel. Okay, so let's start with question 13. Okay, we already solved up to question number 12. Okay, now we starting from the question number 13. Question number 13 from CSIR June 2017. It says that a fair die was thrown 3 times and outcome was repeatedly 6. If the die is thrown again, what is the probability of getting 6? तो यहाँ पर क्या बोला है इस क्वेश्चन में? ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में बोला है कि एक फेयर डाई है, मतलब जो डाइस है, ठीक है, उसको 3 टाइम्स टॉस किया है, थ्रोन करा हुआ है, एंड यहाँ पर आउटकम जो आए हैं वहाँ पर 3 टाइम्स 6 आया है, ठीक है, रिपीटेडली 6 आया है. If the die is thrown again, then what is the probability of getting 6? So here one thing is important, that the repeated outcomes of an throw of a die is independent. That means जो है सपोज एक थ्रोन में 6 आया है कि दूसरा थ्रोन जो है माने सेकेंड टाइम जो होगा उसमें से 6 आएगा, उसका प्रोबेबिलिटी पूरा के पूरा इंडिपेंडेंट है. ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो होगा रिपीटेडली, मतलब यहाँ पे कोई भी दे दो, ठीक है, 6 दे दो, यहाँ पर 1 2 अप टू 6 जो ही पॉइंट आएगा, मतलब एक डाई में क्या होता है 6 पॉइंट होता है, तो ईच पॉइंट आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी होगा 1/6. ठीक है, तो ये जो लाइन फर्स्ट लाइन है ये हम लोगों को कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है यहाँ पर, एंड सपोज यहाँ पर बोल सकते हो कि ये डामी डेटा की जैसा यहाँ पर दिया हुआ है. ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 6, 1/6. नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. इट सेज दैट इन हाउ मेनी वेज can you place n coins on a board with n rows and n columns such that every row and every column contains exactly 1 coin? Okay, so that means we have n coins, okay, and a board with n rows and n columns. Suppose these are the rows, suppose there are n rows, okay, and there are n columns. Okay, so we have to how many ways we have to place this n coin so that each row and each column contains exactly one one coin. Okay, suppose if we choose first one, this this element, okay, so first coin if we put here, then this rows goes cancel and this column goes cancel, because it says that every row, in each row or each column there was exactly 1 coin. So if we put here 1 coin, then this row does not contains any other coin, and if we put here also, this column does not contain any other coin. Therefore we can put here n choice. Okay, we have n choice so that we can place these n coins. Okay, so now if we going to the next one, next step, so the second row or second column, if we go the second row or second any other row or any other column, then here also one choice and one coin can be put in this place. Okay, and it is we can do it by n-1 ways, because we already covered one row and one column. Okay, therefore one row and one column is out of our काउंटिंग्स, यू कैन से, ऐसे सोच सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा n-1 होगा. तो सिमिलरली जो नेक्स्ट होगा वहाँ पर क्या होगा, कितना चॉइस होगा, वहाँ पर n-2 चॉइस होगा. सिमिलरली उसका जो बाद वाला होगा वहाँ पर n-3 चॉइस होगा, एंड देन सो ऑन. यहाँ पर कितना चॉइस होगा, 1 चॉइस होगा. ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा, यहाँ पर n इंटू n-1 इंटू एंड सो ऑन इंटू 2 इंटू 1. तो ये हो जाएगा इसका क्लियर आंसर. तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. ओके, गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. इट सेज दैट इन हाउ मेनी डिस्टिंग्विशेबल वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड चांस इज अरेंज? सो इट इज वेरी बेसिक प्रॉब्लम फ्रॉम प्रोबेबिलिटी एंड अरेंजमेंट. सो द वर्ड इज चांस. तो ओके, यहाँ पर कितना वर्ड है, यहाँ पर 6 वर्ड है टोटल, CHANCE. ओके, सो वी कैन हाउ मेनी डिस्टिंग्विशेबल वर्ड्स, सो वी कैन cover it or we can arrange it by 6 factorial ways. Okay, but here one thing is noted, that here this C is 2 times occur in this spelling or in this word. So the arrangement of this 2C is 2 factorial. Okay, now this is the total and we divide this total arranged ways
by 2 factorial. Okay, so this is our answer. So that means this is 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 by 2 into 1. So these 2 goes to cancel. That means this is our answer, and this multiplication gives you 360. Okay, so answer C is the clear answer. Going to the next problem, question number 16. It says that the probability that the ticketless traveler is caught during the trip is 0.1. मतलब क्या है, कोई एक बंदा है जो बिना टिकट से ट्रेन में जा रहा है, ठीक है, तो उसका पकड़े जाने का मतलब टीटी जो है उसका पकड़ ले, इसका प्रोबेबिलिटी है 0.1, ठीक है। तो इफ द ट्रैवलर मेक्स 4 ट्रिप्स, दैट मीन जो है वो बंदा 4 टाइम्स बिना टिकट में ट्रेन में जा रहा है, ठीक है। तो द प्रोबेबिलिटी दैट ही और सी विल कॉट ड्यूरिंग द एटलीस्ट 1 ट्रिप इज, ओके। तो देखो यहाँ पर जो ट्रैवलर का जो पकड़े जाना है, मतलब टीटी उसको पकड़ लिया, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है 0.1, ठीक है। देन मतलब द प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रैवलर डू नॉट कॉट बाय द टिकट चेकर is what 1 minus 0.1, that means 0.9. okay, so this is the probability that the traveler does not caught by the ticket checker. Okay, so he travels 4 times, therefore we multiply these 4 times, that means 0.9 power 4. okay, this is the probability that the traveler does not caught by the ticket checker. okay, now it says that the probability that he or she will be caught during the trip at least once. okay, so this is the probability that he does not caught, therefore we subtract from 1, since 1 is the total probability, therefore this is the required probability that he or she will be caught during at least one trip. मतलब ये जो probability है, required probability क्या है कि वो जो बंदा है वो बिना टिकट में जा रहा है, तो उसका मतलब उसको टिकट चेकर पकड़ ले, इसका probability कैसा होगा, ठीक है। तो इसका probability का ये वाला, ठीक है। so that means the answer is option A, ठीक है। now going to the next question, question number 17. it says that 3 boxes color red, blue and green. तो यहाँ पर क्या क्या कलर है, 3 रेड है, ब्लू है एंड ग्रीन है। सो आर 3 balls, in how many ways one put the balls one in each box such that no ball goes into the box of its same color, of its own color. that means यहाँ पर जो बॉक्स है, ठीक है, वो क्या क्या है, रेड है, ब्लू है एंड ग्रीन है, ठीक है। तो रेड में जा नहीं सकते, मतलब यहाँ पर ग्रीन आ सकते हैं या ब्लू आ सकते हैं। तो सपोज यहाँ पर ब्लू आया, ठीक है, तो ब्लू ले लिया, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो मतलब ब्लू तो नहीं होगा, तो यहाँ पर इधर रेड हो सकता है और ग्रीन हो सकता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ग्रीन हुआ, मतलब यहाँ पर रेड हुआ तो यहाँ पर ग्रीन हो जाएगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि ग्रीन सेम हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा ग्रीन एंड यहाँ पर होगा रेड, ठीक है। नाउ और एक चॉइस हो सकता है यहाँ पर, जो कि है रेड बॉक्स, ब्लू बॉक्स एंड ग्रीन बॉक्स, ठीक है। सो इफ वी पुट द बॉल्स ऑफ ग्रीन कलर टू द रेड बॉक्स, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पर जो है ब्लू बॉल को रेड बॉक्स में भेज रहे थे, ठीक है। यहाँ पर ग्रीन बॉल को रेड बॉक्स में भेज रहे हैं, ठीक है। तो ब्लू में ब्लू नहीं जाएगा ऑब्वियसली, ब्लू में रेड या ग्रीन यहाँ पर बाकी है, ठीक है। सॉरी, ब्लू एंड रेड यहाँ पर बाकी, तो ब्लू में नहीं जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, रेड ही होगा एंड यहाँ पे जो रेस्ट है वो है ब्लू, ठीक है। तो ये एक चॉइस होगा एंड एक 2 चॉइस होगा, ठीक है। तो टोटल जो चॉइस होगा यहाँ पर वो होगा 2, ठीक है। दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। Now going to the next question, question number 18. It says that the secondary colors are made by the mixture of 3 primary colors, red, green and blue in different proportion. Each of primary colors comes in 8 possible levels. That means ये जो तीनों के तीनों बेसिक्स कलर है, रेड है, सेकेंड है ग्रीन, थर्ड है ब्लू, ठीक है। तो लेवल्स कितना है, 1 लेवल है, 2 लेवल, 3 लेवल, 4 लेवल, 5 लेवल, 6, 7 एंड 8, टोटल 8 लेवल है पर कलर, ठीक है। सो यहाँ पर भी 8 होगा। लेवल्स मतलब सपोज वो डार्कनेस या जो है यहाँ पर बोल सकते हैं ना, जितना डार्क होगा उतना एक लेवल का होगा, ठीक है। क्योंकि रेड का बहुत सारे होता है कि डार्क रेड होता है, ठीक है, लाइट रेड होता है, ऐसे मतलब इसको कहते हैं लेवल कलर का, ठीक है। नाउ यहाँ पर टोटल 8 कलर्स है, ठीक है, मतलब 8 जो है प्रोपोर्शन है, डिफरेंट प्रोपोर्शन है। ग्रे कॉरस्पॉन्ड्स टू द इक्वल प्रोपोर्शंस ऑफ रेड, ग्रीन एंड ब्लू इन हाउ मेनी शेड्स एग्जिस्ट इन दिस स्कीम। दैट मीन्स यहाँ पर तीनों के तीनों सेम प्रोपोर्शन में मिक्स किया तो क्या आएगा, ग्रे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है कितने नंबर ऑफ ग्रे कलर यहाँ पे हम लोग मिक्स कर सकते हैं, मतलब मेक कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो रेड कलर होगा, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ठीक है, इसको सेम प्रोपोर्शन में डालेंगे तो सेम लेवल का ग्रे आएगा, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों सेम प्रोपोर्शन में डालेंगे, मतलब सेम लेवल्स का कलर डालेंगे तो उस लेवल का ही ग्रे आएगा। सपोज यू कैन टेक दिस लेवल्स, यहाँ पर ये जो फर्स्ट लेवल का रेड ले लिया, यहाँ पर थर्ड लेवल का ग्रीन ले लिया एंड यहाँ पे फिर से फर्स्ट लेवल का ब्लू लिया, तो
यहाँ पर ग्रे कलर नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बोला है कि ग्रे कॉरस्पॉन्ड्स टू इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ दिस थ्री कलर्स। देयरफॉर क्या होगा, यहाँ पर लेवल को सेम रखना होगा, मतलब रेड जितना लेवल का ले रहे हो वो भी ग्रीन भी उस लेवल का ही लेना पड़ेगा एंड ब्लू भी उस लेवल का ही लेना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बनेगा, सेम 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 होगा, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर 8 चॉइस बनेगा फॉर ग्रे। ईच लेवल का मतलब 8 लेवल्स का सेम जो है प्रोपोर्शन यहाँ पे डालना पड़ेगा एक एक प्रोपोर्शंस के लिए। मतलब सपोज जो डार्क कलर है, ठीक है, सपोज डार्क रेड है, डार्क रेड एंड डार्क ग्रीन एंड डार्क ब्लू, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों सेम ही प्रोपोर्शन में डालेंगे, डार्क डार्क डार्क, तो डार्क ग्रे ही बनेगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा इसका आंसर, मतलब यहाँ पर टोटल कितना चॉइस होगा, 8 चॉइस होगा, ठीक है। तो बी हो जाएगा इसका आंसर। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। इट सेज दैट जार W contains 40 white marble and jar B contains 40 black marbles. 10 black marbles from B are transferred to W and mixed thoroughly. Now 10 random selected marbles from W are put back in the jar B to make 40 marbles in each jar. The number of black marbles. Suppose यहाँ पे एक जार है, ठीक है, एंड ये एक जार है, ठीक है। यहाँ पर सपोज W जार, ये सपोज है जार B, ठीक है। तो यहाँ पर 40 व्हाइट मार्बल है एंड 0 ब्लैक मार्बल है, ठीक है। 0 क्यों लिख रहे हैं, इसका मीनिंग है, ठीक है। सो जो जस्ट वेट एंड सी। सो देखो यहाँ पे नेक्स्ट बोला है कि यहाँ पर ब्लैक में 40 ब्लैक मार्बल है एंड 0 व्हाइट मार्बल है, मतलब यहाँ पर व्हाइट मार्बल नहीं है और यहाँ पे ब्लैक मार्बल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला है कि 10 ब्लैक मार्बल्स फ्रॉम बी और ट्रांसफर्ड टू W। तो यहाँ से नाउ 10 ब्लैक मार्बल्स यहाँ से ट्रांसफर कर दिया, तो यहाँ पे ब्लैक मार्बल कितना है अभी 30 एंड यहाँ पर कितना है 40 व्हाइट मार्बल है प्लस 10 ब्लैक मार्बल है, ठीक है। नाउ ये इसको मिक्स कर दिया एंड ये बोला है कि 10 रैंडमली सिलेक्टेड मार्बल्स फ्रॉम W आर पुट बैक इन जार B। मतलब यहाँ से ये जो 50 मार्बल्स अब टोटल है, यहाँ से 10 मार्बल्स को हटा के इसके इस जार में हम लोग रख रहे हैं, ठीक है। तो देन यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोला है कि सिलेक्टेड रैंडम मार्बल्स फ्रॉम W आर पुट back in jar B to make 40 marbles in each jar. The number of black marbles in W. Suppose ये जो 10 मार्बल्स यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफर कर रहे हैं, तो यहाँ पे सपोज K ब्लैक मार्बल है, ठीक है, सपोज K ब्लैक मार्बल है, तो व्हाइट मार्बल कितना है 10 माइनस K है, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लैक मार्बल कितना हो रहा है 30 प्लस यहाँ पर 30 प्लस जो होगा 10 माइनस K होगा एंड यहाँ पर होगा 40 माइनस 10 माइनस K। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल रहेगा यहाँ पर क्या होगा 10 माइनस K होगा एंड यहाँ पर जो ब्लैक मार्बल हो जाएगा वो यहाँ पर हो जाएगा 10 माइनस K, ठीक है। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ जो है ब्लैक मार्बल्स इन W। तो नंबर ऑफ ब्लैक मार्बल्स इन W क्या होगा, ये 10 माइनस K होगा, ठीक है। तो दैट मीन्स एंड यहाँ पर बोला कि इज इक्वल टू नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स इन B एंड यहाँ पे भी ब्लैक मार्बल कितना होगा, सॉरी व्हाइट मार्बल कितना होगा 10 माइनस K ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये इक्वल हो जाएगा, ही वुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स इन B। मतलब W में ब्लैक मार्बल जितना होगा वो उस सेम नंबर ही B में व्हाइट मार्बल होगा, ठीक है, 10 माइनस K। तो ये आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। इट सेज दैट फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 40 प्लेयर्स अ क्रिकेट टीम of 11 players chosen random, then one of the 11 is chosen as captain। मतलब एक क्रिकेट टीम है जहाँ पे 40 प्लेयर से 11 प्लेयर्स को सिलेक्ट कर रहा है, ठीक है, एंड 10 वो जो 11 प्लेयर्स है उसमें से एक कैप्टन हो रहा है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ दिस इज डन इज, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है यहाँ पर एंड ये मतलब क्या है NCM, अब सभी जानते हो इसका मीनिंग है NCM, ठीक है, मतलब अरेंजमेंट, ठीक है। तो 40 में से 11 प्लेयर को कैसे अरेंज कर सकते हैं हम, ठीक है, यहाँ पर चूज कर रहे हैं मतलब अरेंज, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर होगा कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट। तो 40C11 यहाँ पर ये हो जा रहा है, मतलब 11 प्लेयर्स को 40 प्लेयर से चूज कर रहे हैं एंड 11 प्लेयर से एक को कैप्टन चूज कर रहे हैं, मतलब 11C1 ये होगा कैप्टन चॉइस का, मतलब वे नंबर ऑफ वेज टू बी चॉइस एज कैप्टन एंड ये हो जाएगा नंबर ऑफ प्लेयर चॉइस का, ठीक है। तो इस दोनों का यहाँ पर बोला है कि द टोटल नंबर ऑफ वेज दिस इज डन, तो ये दोनों सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा। 11C11 1 मीन सिंपली 11 इंटू 40 11 हो जाएगा इसका आंसर, मतलब विच ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, ओके। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। इट सेज दैट कंसीडर सीरीज ऑफ लेटर्स प्लेस्ड इन द फॉलोइंग वे UGCCSIR, each letter moves
one step it's night and extreme right letter takes the first position completing one operation, that means क्या है, UGCCSIR, ये जो written है बोला है कि each letter moves one step right, मतलब एक स्टेप राइट जा रहा है, ठीक है। तो UGCCSI, ये जो R है लास्ट वाला वो फास्ट में आ रहा है, ठीक है। एंड द एक्सट्रीम राइट लेटर्स टेक्स द फर्स्ट पोजीशन, ठीक है, ये फर्स्ट पोजीशन में आ रहा है। सिमिलरली नेक्स्ट क्या होगा, कंप्लीटिंग वन ऑपरेशन, आपने आफ्टर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑफ द ऑपरेशंस डू द सीज डू नॉट सीट साइड बाय साइड, मतलब सी साइड बाय साइड नहीं बैठेगा, इसका क्या मतलब आफ्टर हाउ मेनी स्टेप ये पॉसिबल होगा। तो हम जस्ट कैलकुलेशन करते हैं, तो आर गया नेक्स्ट स्टेप में UGCCS एंड ये जो आई होगा ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप आई के आगे जो लास्ट में एस होगा, ये एस यहाँ पर आ जाएगा, IRUGCC, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा जो यहाँ पर SIRUGC एंड ये सी लास्ट वाला सी यहाँ पर सामने आ जाएगा, ठीक। तो ये देखो ये हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। सी इज नॉट साइड बाय साइड, जस्ट अ सेकेंड, आई थिंक द क्वेश्चन, या दैट मीन्स यहाँ पर बोला है कि तो देखो यहाँ पर जो कंडीशन बोला है रिक्वायर्ड कंडीशन, वो आफ्टर 4 स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे 4 तो ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा आंसर, ये होगा हमारा प्रॉब्लम, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो है 4 स्टेप में देखो यहाँ पर लेटर कितना है, लेटर है यहाँ पर 7, तो ये जो 4 स्टेप है देन आफ्टर हाउ मेनी लेटर्स, मतलब हाउ मेनी ऑपरेशंस ये सेम चीज ऑकर करेगा, ठीक है। कितना, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑपरेशंस फिर से होगा, क्योंकि यहाँ पर 7 लेटर है, तो ये जो पोजीशन है इसको फिर से ऑकर करने के लिए 7 पोजीशन मतलब 7 ऑपरेशन फिर करना होगा। तो 4 + 7 11 भी यहाँ पर आंसर नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, फिर से 7 ऐड करते हैं क्योंकि फिर 7 स्टेप के बाद ये सेम चीज ऑकर करेगा। तो यहाँ पर 7 14 19, यस, तो 19 यहाँ पर आंसर में है, सॉरी 18, 7 + 7 14 + 4 18 भी यहाँ पर आंसर में नहीं है। तो फिर से 7 ऐड करते हैं क्योंकि फिर से 7 स्टेप बाद ये सेम चीज ऑकर करेगा, क्योंकि यहाँ पर 7 वर्ड्स है, ठीक है। तो 7 7 7 4 यहाँ पर आ जाएगा 25, तो ये 25 यहाँ पर आंसर में गिवन है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इसमें से सपोज यहाँ पर ऑप्शन में गिवन होता 11, तो 11 आंसर होता, ठीक है। 11 + 7 18 गिवन होता, तो 18 भी आंसर होता यहाँ पर, एंड 25 तो होगा ही, ठीक है। तो ये दोनों यहाँ पर आंसर में गिवन होता, तो ये दोनों ही यहाँ पर करेक्ट आंसर भी हो सकता था, ठीक है। तो ये इसका जो पॉसिबल आंसर हो सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नाउ गोइंग टू द क्वेश्चन नंबर 22, इट सेज दैट a code consists of at most 2 identical letters means AA BB ऐसे, ठीक है, followed by at most 4 identical digits, ठीक है, 4 identical digits। the code must have at least 1 letter and 1 digit, मतलब जो कोड होगा वो at least 1 letter होगा 1 digit, ऐसा होगा ही होगा। how many distinct codes can be generated using the letters A to Z and the digits 1 to 9, मतलब यहाँ पे टोटल कितना डिजिट्स है, टोटल 9 डिजिट्स है, एंड यहाँ पर लेटर कितना है 26 लेटर, ठीक है। तो जो कोड क्या होगा, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ एटमोस्ट 2 आइडेंटिकल लेटर्स, मतलब देखो 1 लेटर हो सकता है 1 डिजिट हो सकता है, ये एक हो सकता है, 1 लेटर हो सकता है 2 डिजिट हो सकता है, 1 लेटर हो सकता है 3 डिजिट हो सकता है, 1 लेटर हो सकता है 4 डिजिट हो सकता है, ठीक है, ये एक चॉइस हो गया। नाउ 2 लेटर हो सकता है एंड 1 डिजिट हो सकता है, 2 लेटर हो सकता है एंड 2 डिजिट हो सकता है, 2 लेटर हो सकता है 3 डिजिट हो सकता है, 2 लेटर हो सकता है एंड 4 डिजिट हो सकता है। तो ए 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो जाएगा हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बोला है कि जो एटमोस्ट 2 आइडेंटिकल लेटर्स होगा, ठीक है, तो लेटर तो 2 से एक्सीड नहीं कर सकता है, तो एटलीस्ट एटमोस्ट जो लेटर नंबर ऑफ लेटर होगा वो होगा 2, ठीक है। तो इसका कैसा कॉम्बिनेशन बनेगा देखो, तो यहाँ पर 1 लेटर 1 डी जो इसका जो आंसर होगा मेंशन 8 टाइप्स होगा, वो कितना होगा 26 × 9 चॉइस होगा, एंड यहाँ है टोटल 8 चॉइस हो रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पर 8 कंडीशन आ रहे हैं एंड 26 लेटर हमारे पास है एंड 9 डिजिट्स हमारे पास है, एंड यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन ऐसा गिवन नहीं है कि ये लेटर को हम यूज नहीं कर सकते, इस डिजिट को हम यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर 26 से 26 कोई भी आ सकता है, ठीक है। एंड यहाँ पर जो 9 है 9 डिजिट से गिवन है यहाँ पर, तो 9 तो आएगा ही, यहाँ पर तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, एंड टोटल नंबर ऑफ चॉइस कितना है 8, ठीक है। तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो हो जाएगा 8
1872. ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन सी. Now going to the next question, question number 23. It says that a mouse has to go from point A to B without retracing any part of this path and never moving backwards. What is the total number of distinct path that the mouse may be take go from A to B? तो यहाँ पर मैंने पिक्चर जो है वो भूल गया, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं. ठीक है, ऐसा है. ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस सेशंस में एक किया था. ठीक है, आप लोग देखोगे जो सेशंस है तो आप लोग आई थिंक समझ जाओगे. ठीक है, देन जो है ऐसे ऐसे एंड देन ऐसे ऐसे, यहाँ पर ए है एंड यहाँ पर बी है. तो देखो ए से बी यहाँ पर आने के लिए दो पाथ है, एक दो, तो टू पाथ यहाँ पर है, यहाँ पर फोर पाथ है, यहाँ पर थ्री पाथ है एंड यहाँ पर टू पाथ है. ठीक है, ये जो 3 1 2 3 एंड यहाँ पर 1 एंड 2, तो टोटल ये जो प्रोडक्ट हो जाएगा. ठीक, तो सेम क्वेश्चन मैंने मतलब जो लास्ट सेशन है चैप्टर सेशन 5 जो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हुआ, तो वो भी यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व हुआ था. ठीक है, तो इसका आंसर होगा 2 × 4 × 3 × 2, मतलब 48. ठीक है, 48 हो जाएगा इसका आंसर. नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24. इट सेज दैट सपोज अ बॉक्स देयर आर 20 रेड, 30 ब्लैक, 40 blue and 50 white balls. What is the minimum number of balls to be drawn without replacement so that you are content about getting 4 red, 5 black, 6 blue and 7 white? ये इस तरीके का जो क्वेश्चन है ये भी जो है लास्ट सेशन में हुआ था. ठीक है, तो क्या होगा इसका रोस्ट सिचुएशंस क्या हो सकता है वो यहाँ पर हम लेके चलेंगे. तो फास्ट सपोज 50 बॉल उठाया एंड एक भी वाइट नहीं आया, तो 50 वाइट बॉल ही उठा लिया, ये हो जाएगा. ठीक है, देन रोस्ट सिचुएशंस कैलकुलेट करेंगे. ये यहाँ पर जो नंबर ऑफ बॉल्स तीनों के तीनों जो ज़्यादा है वो वहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 30 × 40, तो ये तो कवर हो जाएगा. ठीक है, ये तीनों के तीनों ब्लैक, ब्लू एंड वाइट कवर हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि ये पूरा के पूरा उठा लिया, पूरा के पूरा उठा लिया, पूरा के पूरा उठा लिया, मतलब उसमें जो है 5 ब्लैक, 6 ब्लू एंड 7 ब्लॉक तो आ ही जाएगा, वाइट बॉल तो आ ही जाएगा. ठीक है, क्योंकि ये तो इसका सबसेट है एंड रोस्ट सिचुएशंस कवर मतलब यहाँ पर लेके चले. ठीक है, चल रहे. तो देन क्या होगा, ये जो होगा एंड देन जो बॉल पड़ा है वहाँ से 4 उठा लो, 4 रेडी आएगा, क्योंकि यहाँ पे पूरा के पूरा वाइट आ गया, पूरा के पूरा ब्लू आएगा, पूरा के पूरा ब्लैक भी आ गया. ठीक है, तो जो रिमेनिंग बॉल्स वहाँ पे पड़ा है वो रेडी पड़ा है, तो वहाँ पे 4 रेड बॉल उठा लो, तो ये हो जाएगा इसका आंसर. ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, आई थिंक सॉरी ये तो प्लस होगा, तो ये जाएगा 120 + 4 124, ये ऑप्शन डी. ओके ओके, सो दीज आर द क्वेश्चंस फ्रॉम प्रोबेबिलिटी एंड अरेंजमेंट, ओके, फ्रॉम CSIR NET PYQs, and this ends today's class. Okay, if this video is helpful, then obviously give a like to this session. If you have any problem, then you can comment me in the comment section below, and if this session is helpful for you, then obviously consider subscribing to my channel. Okay, so let's see in the next video. Okay, thank you, bye bye.